Dear students, in the last lecture, we have done the different measurement techniques that may be used for the measurement of nanomaterials. In the last lecture, we have done scanning electron microscope and tunneling electron microscope or transmission electron microscope, which are basically the microscopes by which we can directly image the surface, either the surface of the sample or the material or the bulk part of the material, or so that we can find the surface topography, composition, as well as the size of the nanoparticles which may be dispersed in any liquid. In today's lecture, we will study the probe techniques. When we talk about probe techniques, it means in these techniques, we will use the probes. Probes जैसे a tip. And in both the techniques, the tip will move on the surface of the sample, and the motion of the interaction of the tip with the surface of the material will give us the image. Both techniques are, first is atomic force microscopy and second one is uh, STM, which is scanning tunneling microscope. So first we start with atomic force microscopy. As we can see from the diagram, it's a very simple, you may say, instrument in which many components are not there. In it we have a laser diode, laser light comes out, it is a cantilever, and this cantilever has a tip. This cantilever further has attached with some of the part of the instrument, and after reflection from the this tip of the cantilever, this is our photodetector which can detect the laser light. And sample, we may put sample here below this tip. In actual practice, this tip moves. This tip moves, and whenever the tip moves, there is a change in the position of the reflection of light in the photodetector. So it will detect the change in the motion, and the change in the motion which will be detected by this laser, that can be processed to form an image. If we talk about the principle of atomic force microscopy, the principle is very simple, that a fine sharp tip which is here is of the order of nanometer. इसमें लिखा हुआ है कि radius of this probe is around 20 nanometer, attached to a cantilever. When brought close to a sample surface, the van der Waals force between the tip, the van der Waals force between the tip and the sample produces a deflection in the cantilever in accordance with Hooke's law. The deflection is measured by the laser spot reflected from the top of the cantilever into an array of photodiodes, जिसकी हमने ऊपर डिटेक्टर की बात की थी, photodiode में इसका है. And we also use piezoresistive materials for this tip or the cantilever, and it act as a strain gauge. अगर हम इसकी बात करें तो जो टिप का साइज है, पहली बात तो ये है कि जो टिप है, टिप इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन और सिलिकॉन नाइट्राइड विथ इट्स टिप साइजेस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर ओनली, and that this tip is brought onto the contact with the surface, and the sample is placed on this platform, and cantilever can be moved in XY direction. पहली बात तो ये है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हम जब टिप को इसके ऊपर रखेंगे तो टिप का मोशन कैसे रहेगा. अब अगर हम बात करें कि सपोज जो ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंपल है, और जो ये कर्सर मूव कर रहा है, सपोज ये टिप की पोजीशन है,
तो हमने ये पूरा का पूरा जो सरफेस है सपोज इसको स्कैन करना है, तो स्कैनिंग कैसे रहेगी कि हम टिप को एक कॉर्नर पे पुट कराएंगे। तो पहले टिप हमारी नीचे की तरफ मूव करेगी, मतलब एक डायरेक्शन में, फिर हल्का सा चेंज आएगा तो ऊपर की तरफ मूव करेगी, फिर हल्का सा चेंज आएगा, फिर नीचे की तरफ मूव करेगी, फिर हल्का सा चेंज आएगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगी, चेंज आएगा, फिर नीचे की तरफ मूव करेगी, एंड सो ऑन। दिस कंप्लीट सैंपल इट इज scanned and we can find the interaction basically on each point on this सैंपल सरफेस। तो इस तरह से स्कैन करते करते क्या होगा कि पूरे का पूरा जो सैंपल है वो हमारा स्कैन हो जाएगा। पहले एक लाइन कंप्लीट होगी, मान लो ऊपर से नीचे, या हम कहते हैं एक्स से वाई डायरेक्शन में, फिर दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास थोड़ा सा डिस्प्लेस करके वही टिप दोबारा से, और लाइन लीनियर जैसे यू शेप होती है, पहले नीचे आएगी, फिर शिफ्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से शिफ्ट करेगी, फिर नीचे आएगी, और सो ऑन। हमारे पास पूरे का पूरा जो सैंपल है वो स्कैन हो जाता है। अब पता कैसे लगता है कि हम क्या करते हैं कि जो ये टिप है और जो ये सैंपल है, जब ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक्चुअली ए फीडबैक मैकेनिज्म इज यूज्ड। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि हमें थोड़ा सा आइडिया पहले से ये लगाना पड़ेगा कि जो सैंपल का सरफेस है उसकी रफनेस अप्रोक्सीमेटली कितने कितने लेवल की है। सपोज जो रफनेस है, हमें पता लगा कि जो सैंपल है उसकी जो रफनेस है वो अराउंड 50 नैनोमीटर है। मतलब 50 नैनोमीटर की रफनेस का मतलब क्या है कि जो उसके अंदर अप डाउन्स आएंगे, जो मतलब कुछ जगह हो सकता है एटम्स ऊपर की तरफ उठे हों, कुछ हो सकता है नीचे की तरफ गए हुए हों, तो क्या है वो, उसको हम रफनेस बोलते हैं। जो जो इसका रफनेस है वो हम मानते हैं कि दैट इज अराउंड सपोज 50 नैनोमीटर। तो फीडबैक से हमें पता लग गया, एक आइडिया मिलकर कि 50 नैनोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि जो इस टिप की पोजीशन है इस सैंपल के रिस्पेक्ट में, हम 50 नैनोमीटर के कोरस्पोंडिंग फिक्स करेंगे। और अगर हम उससे कम कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब ये टिप मूव करेगी तो ये एटम्स के साथ स्ट्राइक कर जाएगी, क्योंकि 50 नैनोमीटर के अप डाउन है इसके अंदर, रफनेस है इसके अंदर। तो अगर हम 50 नैनोमीटर से कम का रखेंगे तो ये किसी न किसी एटम के साथ स्ट्राइक कर जाएगी, और स्ट्राइक करने का इफेक्ट क्या होगा कि जो ये टिप है ये ब्रेक हो जाएगी। और क्योंकि ये सिलिकॉन की टिप है, काफी महंगी टिप है, तो इतनी इजिली ये अवेलेबल भी नहीं होती है। तो इसलिए हम जब भी इसके थ्रू इसके सरफेस को स्कैन करते हैं तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो टिप है, टिप हमारी किसी भी रीजन से क्या हो, ये खराब ना हो जाए या ये टूट ना जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फीडबैक से हमें पता लग गया कि रफनेस हमारे पास अराउंड 50 नैनोमीटर है, तो हमने क्या किया, 60 नैनोमीटर सपोज इसकी हाइट फिक्स कर दी। अब जब ये सैंपल को स्कैन करेगी, जब मान लो ये एक डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी, तो क्या है, ये इंटरेक्ट करेगी सरफेस के एटम्स के साथ। जब सरफेस के एटम के साथ इंटरेक्ट करेगी तो जो ये कैंटिलीवर है ये धीरे धीरे ऊपर नीचे होता चला जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये किसी के क्लोज आएगी इंटरेक्शन एनर्जी बढ़ेगी, ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। जब नीचे वाला पार्ट पोर्शन आएगा ये नीचे की तरफ चली जाएगी। तो जो ये जो हमारा कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर का बेसिकली ये वाला एंड है, ये धीरे जैसे जैसे मोशन होगा ये धीरे धीरे ऊपर के नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर की नीचे की तरफ मूव करेगा तो जो ये लाइट इसके ऊपर फॉल करके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जैसे ही इसकी पोजीशन ऊपर नीचे होगी, इसके अंदर क्या है कि इनकी पोजीशंस भी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने क्या कर रखा है फोटो डायोड के अंदर, बिकॉज दिस इज ए पोजिशन सेंसिटिव फोटो डायोड, हमने इस फोटो डिटेक्टर सॉरी, इसके अंदर क्या कर रखा है कि इसके अंदर हमने ऐसा सॉफ्टवेयर एक एनालिसिस डाल रखा है कि जैसे जैसे इसकी पोजीशन ऊपर नीचे आएगी ये फर्दर कनेक्ट होकर कंप्यूटर से हमें क्या करेगा, उसके बारे में एक इमेज फॉर्म कर देगा। तो वेरिएशन इन द टिप हाइट आर रिकॉर्डेड व्हाइल द टिप इज स्कैन्ड रिपीटेडली अक्रॉस द सैंपल प्रोड्यूसिंग ए टोपोग्राफिक इमेज ऑफ द सैंपल। टोपोग्राफिक का मतलब है क्या है कि ऊपर की तरफ से हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे मान लो हम पहाड़ियों की तरफ घूम रहे हो। अब हमें पहाड़ियों की हाइट का अंदाजा लगाना है, और पहाड़ियों की हाइट का अंदाजा लगाने के लिए हम क्या करें, सपोज एक इस तरह का कैंटिलीवर बहुत बड़ा बनाएं और उसको पहाड़ियों के बीच में डाल दें एक टिप को। तो क्या है, वो टिप क्या है कि धीरे धीरे मूव करते चली जाएगी, और हम ये मान के चलें कि अगर वो किसी के क्लोज आती है तो ये टिप ऊपर की तरफ उठ जाए, और अगर ये किसी मान लो एकदम से डेप्थ आती है, कोई वैली आती है, ये नीचे की तरफ चला जाए, तो होगा क्या कि जो ये कैंटिलीवर है ये अप डाउन होता चला जाएगा। जैसे जैसे हमारे पास कोई हाइट आएगी ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जैसे जैसे कोई वैली आएगी ये नीचे की तरफ चला जाएगा। और जो इसका मोशन है वो अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट डालेगा, वो इसके अंदर जो हमारा फोटो डिटेक्टर है इसके अंदर जो लेजर की पोजीशन है उस पर इफेक्ट डालेगा, और उसकी पोजीशन से हमें क्या मिलेगा, हमें उसका टॉप व्यू मिल जाएगा।
टॉप व्यू का मतलब क्या है कि अगर आप ऊपर से मान लो उस पहाड़ी के इलाके की कोई फोटो खींचे, तो वो जो पार्ट है वो उसी तरह का अगर हम नैनो लेवल पे जाके किसी भी मटेरियल के सरफेस को स्कैन करते हैं तो हमें बिल्कुल वैसा ही मिलता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज द इमेज ऑफ द AFM, यू कैन सी। हमारे पास ये देखिए, ये हम जब सरफेस को स्कैन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का पैटर्न बनता है और हमें ये चीजें मिलती हैं। तो इसको आगे फर्दर एनालाइज करके हम उसकी कंपोजिशन और उसकी टोपोग्राफी को पता लगा सकते हैं। अब ये देखो, इसमें ना कलर्स के साथ भी हमने चेंज कर रखा है कि जो हाइट्स हैं, जो ऊपर की तरफ उठे हुए पोर्शन है वो येलोइश है सारे के सारे, जो डेप्थ्स हैं, जो नीचे की तरफ है, जो वैलीज हैं, वो सारी की सारी हमने रेडिश कलर से की हुई हैं। तो इससे क्या है कि जब हम इसको एनालाइज करते हैं, एक्चुअली स्केल्स आर आल्सो देयर, ये स्केल्स हैं, इसके थ्रू इसका एनालिसिस होता है, वो तुम्हारे पार्ट नहीं है। मैं तो तुम्हें हमें सिर्फ एक आइडिया देना है कि ये काम कैसा करता है। तो हमारे पास इस तरह की इमेज मिल जाएगी और इसको एनालाइज करके हम उस सैंपल की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। अगर हम सेकंड प्रोब टेक्निक को यूज करें तो वो क्या है, दैट इज STM। STM इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो इसका ये देखो, जो इसका सबसे बढ़िया काम है, गुड रिजोल्यूशन इज कंसिडर्ड 0.1 नैनोमीटर, 0.01 नैनोमीटर डेप्थ रिजोल्यूशन। इसका मतलब हम इंडिविजुअल एटम को भी इससे इमेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल एटम को, एटम्स की पोजीशन क्या है, हम उसको भी इमेज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टेक्निक। अगर हम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल इज सिंपली, इसके नाम में भी है कि इट विल स्कैन द सैंपल, सम टनलिंग इज देयर, इट्स ए माइक्रोस्कोप, सम टनलिंग इज देयर। तो इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। आपने पढ़ा हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि क्वांटम मैकेनिक टनलिंग क्या है। क्वांटम मैकेनिक टनलिंग बेसिकली क्या है कि जब भी कोई पार्टिकल हमारा ऐसे एनर्जी बैरियर से जंप कर जाता है जहां पे क्लासिकली उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो उसके थ्रू मूव कर सके, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। इसके अंदर हम टनलिंग का कंसेप्ट कहाँ यूज करते हैं, ये देखिए, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये एक टिप है और ये टिप हमने सैंपल के क्लोज लेके आए। जब हम सैंपल के क्लोज लेके आते हैं इस टिप को, तो सपोज हमारा इस तरह का है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये हमारा टिप है, ये एटम्स है इसके अंदर, और ये नीचे का पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, सैंपल है जो रखा है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो ये हमारी टिप है, जो ये टिप है, इट इज जनरली मेड अप ऑफ टंगस्टन और प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। इट इज मेड अप ऑफ tungsten or platinum iridium alloy, and it's a very fine tip, and this fine tip it is positively charged. Important चीज क्या है, this fine tip it is positively charged and act on a probe when it is lowered to a distance of 1 nanometer above the surface of a sample under study। मतलब हम जो इसके बीच का जो गैप रखते हैं दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी हम वही काम करते हैं कि एक फीडबैक मैकेनिज्म यूज करते हैं, और उस फीडबैक मैकेनिज्म से हम ये देखते हैं कि हमने इसको कहाँ पे रखना है। एट इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस सरफेस, जो भी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर अट्रैक्टेड टू दिस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्रोब वायर, और एंड दे, अब इसके बीच में क्या है, ये देखिए, इसके बीच में अगर हमने 1 नैनोमीटर का भी डिस्टेंस रखा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में हमारे पास सम इंसुलेटिंग, यू मे से सम इंसुलेटिंग लेयर इज देयर। व्हेन सम इंसुलेटिंग लेयर इज देयर इट मींस इसको, इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से और इस तक जंप करने के लिए इस लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड इफ सपोज हमने हाई वैक्यूम में इसको किया है, ऑल्दो हम इसको केरोसिन में या एयर में भी कर सकते हैं, बट जनरली जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो हमारे वैक्यूम में मिलते हैं। तो अगर ये वैक्यूम लेयर है तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इजीली जा सकता है। इसका मतलब हमारे पास 2 कंडक्टिंग सरफेसेज हैं और बीच में एक इंसुलेटर सरफेस है, और जब ये इसको यहाँ से क्रॉस करेगा तो ओनली टनलिंग में भी देयर, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग विल बी देयर। तो दैट्स व्हाई द प्रिंसिपल इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन को हमें इस सरफेस से इस सरफेस पे, इस सरफेस से और इस सरफेस पे जंप करवाना है।
और हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं। इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसकी AFM की तरह इसकी पोजीशन को फिक्स रखें कि डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन ये ऊपर नीचे होती रहे कैंटिलीवर की तरह, और दूसरा क्या है कि, और जो जनरल मेथड यूज होता है कि हम इसके बीच का जो करंट है उसको मेजर कर लेते हैं। सपोज इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर का करंट उस इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से इसके अंदर फ्लो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी पोजीशन को इस तरह से ऊपर नीचे, जब ये इसके ऊपर से स्कैन करेगी, स्कैनिंग का तरीका वही रहेगा कि सैंपल के एक बार इधर जाएगी, फिर थोड़ी सी उधर होगी, फिर वापस इधर जाएगी, फिर थोड़ी सी उधर होगी, फिर इधर जाएगी, फिर थोड़ी सी उधर होगी, फिर इधर जाएगी, और इस तरह से क्या है, ये पूरे का पूरा जो सैंपल है वो हमारा स्कैन हो जाता है। अब स्कैनिंग में जब टिप मूव करेगी तो डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन, इनके बीच में गैप कितना है। अब ये देखो इस पार्ट में गैप कम रहेगा, और जब ये इस डेप्थ पे आएगा तो हमारा जो गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब गैप ज़्यादा हो जाएगा तो करंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, और जब गैप हमारा कम होगा तो करंट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। हम इसके अंदर इसको जब मूव कराएंगे, हमने इसके अंदर इस तरह से कर दिया कि जो करंट है दैट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, करंट दैट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। जब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया तो वो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि करंट हमारा कांस्टेंट रहे, क्योंकि अगर ये इसके नजदीक होके करंट हमारा बढ़ रहा है तो ये अपने आप को जो टिप है वो ऊपर उठा लेगी ताकि करंट कांस्टेंट हो जाए। फिर जब ये देखेगी कि गैप हमारा बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, तो ये अपने आप को नीचे ले आएगी ताकि जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाए। और इस तरह से जो टिप है वो जैसे AFM में चल रहा था ये ऊपर नीचे मूव करती रहेगी, और जो टनलिंग करंट है उसको हम यहाँ से एम्पलीफाई करके और उसके क्रॉस यहां से हम उसको चेक कर लेंगे। अब दो चीजें हैं, अगर हम करंट को कांस्टेंट करते हैं तो हम जो मेजरमेंट करते हैं वो अप डाउन की मेजरमेंट करते हैं, और अगर हम करंट को कांस्टेंट ना करके हम करंट का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि जब ये इसके ऊपर से एक कांस्टेंट डिस्टेंस से मूव कर रही है तो इसके अंदर जो करंट का वेरिएशन है वो किस तरह से है। अब जो करंट वेरी करेगा, जहां पे हमारा करंट बढ़ेगा इसका मतलब वहां पे हाइट आ गई, जहां पे करंट घटेगा इसका मतलब वहां पे हाइट उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ गया। तो इस करंट को प्रोसेस करके इन दोनों को पे हमने कांस्टेंट हाइट पे इसको स्कैन करवा दिया। जब कांस्टेंट हाइट पे इसको स्कैन कराया तो जो करंट का ग्राफ आएगा उसके बेस पे हमें ये पता लग जाएगा कि जो कहां पे हमारी हाइट्स ज्यादा है, कहां पे हमारे हाइट्स कम है, और इस तरह से जो पूरे का पूरा जो सैंपल है वो इसका स्कैन हो जाएगा। ये देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है द रिजल्टिंग टनलिंग करंट इज ए फंक्शन ऑफ टिप पोजीशन, अप्लाइड वोल्टेज एंड लोकल डेंसिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द सैंपल। तीन चीजों पर डिपेंड करेगी कि जो करंट आएगा हमारा वो टिप की पोजीशन क्या है, अप्लाइड वोल्टेज हमने कांस्टेंट कर दी, लोकल डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने क्योंकि सेम मटेरियल है तो सपोज सेम कर दी, तो ये एक ही बात हो जाएगी कि टिप की पोजीशन कितने हाइट पे है। तो जब हम करंट का ग्राफ ड्रा करेंगे तो करंट के ग्राफ से हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो सैंपल का जो टेक्सचर है, जो ऊपर की टोपोग्राफी है वो हमारी कैसी है। और अगर हम इसके ग्रोथ देखें तो हमारे पास इमेजेस इस तरह की आती है, यू कैन सी। हमने प्रोसेस करके जब इमेजेस को ड्रा किया तो हमारे पास ऐसी आएंगी, जो हाइट्स हैं वो हमारे पास येलोइश कलर में शो कर रहे हैं, जो डेप्थ्स हैं वो यहाँ पे ब्लैकिश कलर में आ रही है, और जो नॉर्मल है वो हमारे पास रेड कलर में आ रहा है। और ये हमने लेंथ बना ली कि ये 20 नैनोमीटर है, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा। दीज आर बेसिकली इंडिविजुअल आइटम्स। अगर हम बात करें STM की तो दीज आर इंडिविजुअल आइटम्स, और इंडिविजुअल आइटम्स को हमने स्कैन करके ही ये चेक कर लिया कि जो हमारे पास इसके अंदर जो साइजेस इन्वॉल्व हैं, जो मटेरियल है उसकी टोपोग्राफी कैसी है और उसको हमें कैसे स्टडी करना है। तो दीज आर बेसिकली 4 techniques in your syllabus. First one was SEM, scanning electron microscope. Second was TEM, transmission electron microscope. Third one was AFM, atomic force microscopy, and fourth one is scanning tunneling microscope, STM। तो ये 4 हैं। इन तुम्हारे सिलेबस में इससे ज़्यादा ना कोई पूछेगा ना आएगा, इसको बुक से पढ़ लेना। कोई दिक्कत होती है तो हम डिस्कस करेंगे। तुम्हारे सिलेबस में बस बेटा इतना ही है कि आपको इनके प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए और इनकी जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं, और इनकी कंस्ट्रक्शन कि इसके अंदर क्या क्या होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ो। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड टिल देन थैंक यू।